پیش خدمت ہے کہانی شمشان کا 5واں حصہ۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی قسط میں سنا کہ عمران جادوگرنی کی لاش کی ہدایت کے مطابق انڈیا سے ہوتا ہوا سری لنکا پہنچ گیا۔ اب آگے سنیے کیا ہوتا ہے۔ عمران دوپہر کے وقت سری لنکا کی بندرگاہ مینار پہنچا تھا۔ جادوگرنی کی لاش نے کہا تھا کہ آسیبی برگد کے درختوں والا علاقہ لنکا کے شمال میں ہی واقع ہے اور وہاں کے لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، اس لیے وہاں لوگوں سے تمہیں اس جنگل کا پتہ چل جائے گا۔ عمران کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ مینار کی بندرگاہ چھوٹی سی تھی۔ سامنے ناریل کے درختوں کے سائے میں ایک دو لکڑی کے کھوکھا نما ہوٹل تھے جہاں ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور کچھ مقامی لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور چائے پی رہے تھے۔ ایک میز پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس نے سری لنکا کے عام لوگوں کی طرح کمر تک قمیض کے اوپر لہنگا باندھ رکھا تھا۔ رنگ گہرا سانولا تھا۔ صورت و شکل سے وہ سری لنکا کا باشندہ لگتا تھا۔ عمران اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کھانے کا آرڈر دے دیا اور پاس بیٹھے لڑکے سے انگریزی میں باتیں شروع کر دی۔ جنوبی ہند اور لنکا میں انگریزی زبان عام بولی جاتی ہے۔ عمران نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں ٹورسٹ ہوں اور پاکستان سے سری لنکا کی سیاحت کرنے آیا ہوں۔ اتفاق سے وہ لڑکا بھی مسلمان تھا۔ اس کا نام عبدالسلام تھا۔ وہ وہیں گودی میں کام کرتا تھا۔ وہ عمران سے مل کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، مجھے پاکستان دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ پاکستان ہمارا دوست ملک ہے۔ عمران نے اسے دعوت دی کہ وہ پاکستان آئے تو اس کے پاس آ کر قیام کرے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد عمران نے لنکا کے جنگلوں اور سرسبز وادیوں کی بات چھیڑ دی۔ سری لنکا بڑا خوبصورت اور سرسبز ملک ہے۔ یہاں کے جنگل دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ باتوں ہی باتوں میں عمران کہنے لگا، سنا ہے یہاں ایک جنگل ہے جہاں برگد کے 6-7 درخت ساتھ ساتھ اگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان درختوں میں جن بتوں کا بسیرا ہے۔ عبدالسلام نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، تم اس طرف مت جانا، وہ جنگل چڑیلوں کے درختوں والا جنگل مشہور ہے، وہاں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ عمران نے کہا، مجھے جنگل دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ عبدالسلام کہنے لگا، میں تمہیں اس طرف جانے کا مشورہ نہیں دوں گا، بہتر ہے کہ اس خیال کو دل سے نکال دو۔ عمران کہنے لگا، میں جن بتوں اور چڑیلوں کو نہیں مانتا، میں سری لنکا کے جنگلوں پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ میرا چڑیلوں کے درختوں والے جنگل میں جانا بہت ضروری ہے۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ جنگل یہاں سے کس طرف واقع ہے۔ عمران کے بے حد اصرار کرنے پر عبدالسلام نے بتایا، اگر تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے تو تمہاری مرضی۔ یہ جنگل یہاں سے جنوب مشرق کی طرف ٹرنکو مالا سے 20 میل مشرق کی جانب ایک سمندری کھاڑی کے کنارے پر واقع ہے۔ چڑیلوں والے برگد کے درخت جنگل کے وسط میں ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ 7 بڑے گنجان درخت ہیں جن کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں اور درختوں کے تنے ستونوں کی طرح کھڑے ہیں، لیکن میں اب بھی تمہیں یہی کہوں گا کہ اس طرف مت جانا۔ عمران بولا، اچھا میں سوچوں گا۔ عمران نے چڑیلوں والے درختوں کا پتہ لگا لیا تھا۔ چنانچہ کھانا کھانے کے بعد اس نے ٹورسٹ بیگ کندھے پر لٹکایا اور مینار کے چھوٹے سے اسٹیشن پر آ گیا۔ یہاں سے ٹرنکو مالا کی طرف برانچ لائن پر ریل گاڑی جاتی تھی۔ 1 گھنٹے بعد اسے گاڑی مل گئی۔ ٹرنکو مالا پہنچنے کے بعد عمران کو عبدالسلام نے جو پتہ بتایا تھا وہ اس کے مطابق اسٹیشن کے جنوب مشرق کی طرف جانے والے چھوٹے سے راستے پر چل پڑا۔ اگرچہ سری لنکا میں یہ مونسون کا موسم نہیں تھا، لیکن آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ شاید بارش ہو۔ سری لنکا میں بارشیں بہت ہوتی ہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے پیچھے سے ایک کھڑکھڑاتی ہوئی پرانی ویگن آتی دکھائی دی۔ اس نے ویگن کو ہاتھ دے دیا۔ معلوم ہوا یہ ویگن دوسرے قصبے کو جا رہی ہے۔ ویگن میں دیہاتی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران بھی بیٹھ گیا۔ ویگن چل پڑی۔ جب کنڈکٹر نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے تو عمران نے انگریزی میں کہا، بھائی مجھے چڑیلوں والے جنگل میں جانا ہے۔ کنڈکٹر حیران ہو کر عمران کو دیکھنے لگا، پھر اس نے ٹکٹ دیتے ہوئے کہا، ویگن اس جنگل کے قریب سے گزرے گی تو وہاں اتر جانا۔ 25-30 میل کے سفر کے بعد ویگن نے عمران کو ایک سمندری کھاڑی کے پاس اتار دیا۔ کنڈکٹر نے کھاڑی کے دوسرے کنارے کی طرف اشارہ کیا اور بولا، وہ سامنے چڑیلوں والا جنگل ہے، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ عمران بیگ کندھے سے لٹکائے کھاڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ایک جگہ سے اس نے کھاڑی عبور کی اور دوسرے کنارے پر آ گیا۔ یہاں سے چڑیلوں والا جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ اس آسیبی جنگل کے شروع میں ہی ایسے درخت کھڑے تھے کہ ان پر جھکے ہوئے بتوں کا گمان ہوتا تھا۔ ایک عجیب پراسرار ڈرا دینے والا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جنگل میں عام طور پر پرندوں کا بڑا شور ہوتا ہے، خاص طور پر سورج غروب ہونے کے وقت تو پرندوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن اس جنگل میں کوئی پرندہ نہیں تھا۔ گہری خاموشی طاری تھی۔ ایک تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، دوسرے درخت بڑے گنجان تھے، جس کی وجہ سے جنگل میں شام سے پہلے ہی ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ عمران مشرق کی سمت جا رہا تھا۔ کسی درخت پر کوئی چڑیا تک نہیں بول رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ پرندے بھی اس آسیبی جنگل کی طرف آتے ہوئے ڈرتے تھے۔ جنگل میں کافی دور تک چلنے کے بعد آخر چڑیلوں والے درختوں کی نشانی نظر آئی۔ یہ گدلے پانی کا چھوٹا سا جوہر تھا جس کی ساکن سطح کو گلے سڑے سیاہ پتوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ جادوگرنی کی لاش نے بتایا تھا کہ اس جوہر کے دوسرے کنارے پر برگد کے آسیبی درخت ہیں۔ عمران بدروؤں اور آسیبوں کے اتنے تجربوں میں سے گزر چکا تھا کہ اب اسے ان چیزوں سے زیادہ خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے وہ ایک انتہائی اہم مشن پر جا رہا تھا اور اس مشن کی کامیابی میں ہی اس کی اپنی نجات تھی۔ ایک لمحے کے لیے گدلے جھوڑ کے پاس کھڑا ہو گیا اور سامنے والے درختوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ ہوا بالکل ساکن تھی، شام کا جھٹپٹا ہو رہا تھا۔ اس نیم تاریک نیم روشن ماحول میں درختوں کی شکلیں عجیب و غریب بھوتوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔
इमरान अल्लाह का नाम लेकर उन दरख्तों की तरफ चल पड़ा। जंगल वाकई बड़ा घना और डरावना था। दरख्तों की वजह से हर तरफ अंधेरे का गुबार सा फैला हुआ था। आखिर इमरान को कुछ फासले पर साथ साथ खड़े दरख्तों के कुछ सतून धुंधले धुंधले से दिखाई दिए। वो समझ गया कि यही चुड़ैलों और बरगद के 7 दरख्त हैं। वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। अब वो बड़ी एहतियात से कदम उठा रहा था, क्योंकि ये सारा इलाका चुड़ैलों के आसेब की जद में था। जैसे ही उसने आसेबी दरख्तों की तरफ कदम बढ़ाया, एक अजीब सी आवाज उसके कानों से टकरा कर गुजर गई। ये किसी औरत की ऐसी आवाज थी जैसे उसने किसी को पुकारा हो। 2-3 कदम चलने के बाद उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। चलता गया। चुड़ैलों और बरगद के दरख्त अब उससे 10-15 कदम के फासले पर थे। अचानक परों के फड़फड़ाने की आवाजें आने लगीं। इमरान रुक गया। ये आवाजें ऐसी थी जैसे बेशुमार बड़े बड़े परों वाले गिद्ध उसके ऊपर से गुजर गए हों। उसने चारों तरफ तारीक धुंधलके में देखा, वहां कोई भी नहीं था। वो बरगद के दरख्तों के और करीब हो गया। उन दरख्तों ने वहां एक बहुत बड़ा साइबान सा डाल रखा था। दरख्तों की जड़ें जमीन से निकलकर चारों तरफ फैली हुई थी। दरख्तों की लंबी लंबी शाखें जमीन को छू रही थी। अब एक फलक शिगाफ चीख जंगल के सन्नाटे में गूंज उठी। इमरान अपनी जगह पर खड़े खड़े कांप उठा। उसके साथ ही चीखों की मिली जुली आवाजें बुलंद होने लगीं। ये औरतों की चीखें थीं। अगर जादूगरनी की लाश ने इमरान को पहले से ना बताया था तो वो चीखों की आवाजों से यकीनन बेहोश हो गया होता, मगर वो दिल मजबूत करके अपनी जगह पर खड़ा रहा। चीखें पहले दूर से आ रही थी, फिर इमरान के चारों तरफ बहुत करीब आकर बुलंद होने लगी। इमरान ने बुलंद आवाज में कहा, अगर तुम में से कोई राक्षसनी नाम की चुड़ैल है तो वो औरत के रूप में मेरे सामने आए। मैं गुरुदेव यातंजलि का उसके लिए पैगाम लाया हूँ। जैसे ही इमरान ने ये अल्फाज बोले, जंगल में सन्नाटा छा गया। चीखों की डरावनी आवाजें खामोश हो गईं। फिर उसने देखा कि एक दरख्त के पीछे से एक औरत निकलकर उसकी तरफ आ रही है। इमरान समझ गया कि यही राक्षसनी चुड़ैल है। इमरान के करीब आकर वो औरत रुक गई। ये सामने रंग की 20-22 साल की एक नौजवान और खुश शक्ल औरत थी, जिसने कासनी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल उसके कंधों पर खुले थे, माथे पर सुर्ख बिंदिया लगी थी। उसकी आंखें बड़ी रोशन और चमकीली थी, उनमें से नीली नीली शुआएं निकल रही थी। ये राक्षसनी चुड़ैल थी जो एक खुशशक्ल औरत का रूप बदलकर इमरान के सामने आई थी। इमरान पर एक खौफ सा जरूर तारी हो गया था। यह ख्याल ही उसे खौफजदा करने के लिए काफी था कि जो खुश शक्ल औरत उसके सामने खड़ी है, असल में वो एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल है। राक्षसनी ने इमरान से पूछा, तुम्हारे पास गुरुदेव की कोई निशानी हो तो दिखाओ। इमरान ने जेब से जादूगरनी लाश का दिया हुआ स्याह मोहरा निकालकर कहा, गुरुदेव ने यह मोहरा तुम्हारे लिए भेजा है, क्या यह निशानी काफी नहीं है? राक्षसनी चुड़ैल ने हाथ बढ़ाकर इमरान से स्याह मोहरा ले लिया। राक्षसनी चुड़ैल की उंगलियां इमरान के हाथ से टकराई तो उसे एक हल्का सा झटका लगा, जैसे उन उंगलियों में कोई करंट दौड़ रहा हो। आखिर वो चुड़ैल थी और बकौल जादूगरनी की लाश के बड़ी खतरनाक चुड़ैल थी। इमरान को यह मालूम नहीं हो सका था कि उस वक्त राक्षसनी को भी एक बहुत जबरदस्त झटका लगा था, और ये उस तावीज की वजह से था जो इमरान ने बांध रखा था। राक्षसनी ने स्याह मोहरे को बड़े गौर से देखा, उसे सूंघा, फिर उसे अपने माथे से लगाकर कहा, गुरुदेव यातंजलि हमारे गुरु हैं, उनके आशीर्वाद से हम यहाँ रह रहे हैं, बताओ तुम क्या चाहते हो? इमरान ने कहा, मुझे बदरू कजली के तिलिस्मी पुतले की तलाश है। आसेबी खंडर वाली जादूगरनी की लाश ने बताया है कि बदरू कजली ने अपना तिलिस्मी पुतला श्रीलंका के किसी जंगल में छुपा कर रखा हुआ है। मैं उसकी तलाश में गुरुदेव के आशीर्वाद से तुम्हारे पास आया हूँ। राक्षसनी चुड़ैल ने स्याह मोहरा अपनी साड़ी के अंदर किसी जगह संभाल कर रख लिया था। कहने लगी, मैं समझ गई हूँ कि तुम कौन हो और तुम बदरू कजली का तिलिस्मी पुतला किस लिए हासिल करना चाहते हो। इमरान ने अपनी इंसानी हमदर्दी के मिशन की वजाहत करने के ख्याल से कहा, बदरू कजली ने इंसानों को बेदरे हड़प करना शुरू कर दिया है। मैं इंसानी हमदर्दी के ख्याल से। राक्षसनी चुड़ैल ने किसी कदर गुस्सीली आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई गर्ज नहीं है। अगर तुम्हारे पास गुरुदेव का मोहरा ना होता तो तुम इस वक्त जिंदा ना होते। सबसे पहले मैं तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाती, मगर मुझे हर हालत में गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। मैं कजली बदरू का पुतला हासिल करने में तुम्हारी मदद करने की पाबंद हूँ। इमरान ने कहा, क्या तुम ये बता सकती हो कि यह पुतला उसने किस जगह रखा हुआ है? राक्षसनी चुड़ैल ने अपने लंबे बालों को पीछे झटकते हुए कहा, जिस बदरू कजली का यह पुतला है मुझसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। वो काले जादू की माता है। अगर उसे जरा सी भी भनक पड़ गई कि मैं उसके पुतले की तलाश में हूं तो एक लम्हे में यहाँ आकर मुझे चीड़ फाड़ डालेगी। लेकिन मैं गुरुदेव के हुक्म की वजह से तिलिस्मी पुतला तलाश करने पर मजबूर हूँ। इमरान कहने लगा, तुम्हारे पास भी काले जादू की ताकत है, तुम अपने जादू के जरिए पुतले का पता लगा सकती हो। राक्षसनी चुड़ैल बोली, मेरा सारा जादू बदरू कजली की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम इस किस्म की बात अब ना करना। मैंने तुम्हें कह दिया है कि मुझे गुरुदेव की हुक्म का पालन करना है और मैं उनकी खातिर कजली के तिलिस्मी पुतले का सुराग लगाने की पूरी कोशिश करूंगी। इमरान खामोश रहा। राक्षसनी चुड़ैल ने 2-3 लंबे लंबे सांस लिए और कहने लगी, तुम 2 दिन छोड़कर रात के वक्त यहाँ आना। फिर खुद ही कुछ सोचकर बोली, नहीं तुम यहाँ मत आना। मैं नहीं चाहती कि चुड़ैलों में से किसी को ये राज मालूम हो जाए। तुम किस जगह रहते हो? इमरान ने कहा, मैं आज दोपहर को ही श्रीलंका पहुंचा हूँ।
मनार की गोदी से रेल में बैठकर ट्रंकोली आया हूँ और वहां से तुमसे मिलने यहाँ जंगल में आ गया हूँ। राक्षसनी चुड़ैल इमरान को अपनी मकनातीसी निगाहों से घूर कर देख रही थी। कहने लगी, जाओ और ट्रंकोली के किसी होटल में ठहर जाओ। 2 दिन बाद मैं शाम के बाद खुद आकर तुम्हें मिलूंगी। इमरान बोला, क्या तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन से होटल में ठहरा हूँ? इतना सुनना था कि राक्षसनी चुड़ैल की आंखों से नीली चिंगारियां सी फूटने लगी। उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार पैदा हो गए। इमरान को फौरन एहसास हो गया कि ये औरत चुड़ैल है, इसके आगे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। राक्षसनी चुड़ैल ने दांत पीसते हुए कहा, तुम मनुष्य लोग बड़े गुस्ताख होते हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं राक्षसनी चुड़ैल हूं, जो इस मुल्क की सारी चुड़ैलों की महारानी चुड़ैल है? इमरान ने फौरन माजरत पेश करते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दो राक्षसनी, मुझसे भूल हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। राक्षसनी चुड़ैल का गुस्सा ठंडा हो गया। कहने लगी, अब तुम जाओ, मैं 2 दिन के बाद शाम को जहां भी तुम होगे तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहकर राक्षसनी चुड़ैल गायब हो गई। इमरान ने उसी लम्हे चुड़ैलों के जंगल से वापसी का सफर शुरू कर दिया। एक बात इमरान ने खास तौर पर महसूस की थी कि राक्षसनी चुड़ैल पहले तो उससे 1 कदम के फासले पर खड़ी रही थी, लेकिन जब उसने स्याह मोहरा इमरान के हाथ से ले लिया था और दोनों के हाथ एक दूसरे से मस हुए थे, उसके बाद राक्षसनी चुड़ैल औरत के रूप में ही उससे 2 कदम पीछे हट गई थी। उसकी वजह से इमरान बेखबर था, मगर राक्षसनी चुड़ैल फौरन समझ गई थी कि इस इंसान ने अपने जिस्म पर कहीं अल्लाह के पाक नाम का तावीज़ बांध रखा है। अगर राक्षसनी चुड़ैल उस वक्त इंसान यानी औरत के रूप के बजाय अपनी असली चुड़ैल के रूप में होती तो जलकर राख हो जाती। वो सिर्फ इसलिए बच गई थी कि वो चुड़ैल के बजाय एक इंसान यानी औरत के रूप में थी। उसके बावजूद उसे इस कदर शदीद झटका लगा था कि उसकी जगह अगर कोई दूसरी आम चुड़ैल होती तो उसका जिंदा बच जाना नामुमकिन था। इमरान ट्रंकोली आकर एक दरमियाने दर्जे के होटल में ठहर गया, जहां आमतौर पर सयाह आकर ठहरा करते थे। उसने 2 दिन उसी होटल में गुजार दिए। 2 दिन के बाद शाम हुई तो वो होटल की बालकनी में आकर बैठ गया। उस वक्त बारिश हो रही थी। बालकनी में ही कुछ फासले पर 2-3 गैर मुल्की सयाह भी बैठे काफी पीते हुए श्रीलंका की बारिश से लुत्फानंदोज हो रहे थे। उनमें कर्नाटक का एक हिंदू सयाह भी था जो हर एक से बढ़ बढ़कर मजाक कर रहा था। उसने इमरान से भी बेतकल्लुफ होने और मजाक करने की कोशिश की, मगर इमरान खामोश रहा। कर्नाटक का ये सयाह माथे पर तिलक लगाए रखता था और उसने एक दिन पहले एक अंग्रेज सयाह खातून से भी फौहश मजाक किया था, जिसके जवाब में अंग्रेज खातून बेचारी गुस्सा पीकर रह गई थी। इमरान बालकनी में एक तरफ अकेला बांस की कुर्सी पर बैठा बार बार घड़ी देख रहा था। शाम हो रही थी, राक्षसनी चुड़ैल के आने का वक्त हो गया था। उसने उसी रोज शाम को आने का वादा किया था, मगर वो अभी तक आई नहीं थी। इमरान के दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। किसी वक्त उसे ये ख्याल आता कि शायद राक्षसनी भूल गई हो, मगर फौरन ही वो सोचने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये गैर मरी मखलूक वादे की पाबंद होती है। राक्षसनी ने वादा किया है तो वो जरूर आएगी। वो इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था कि अचानक बादल जोर से गरजे, बिजली चमकी और दूसरे लम्हे उसने राक्षसनी को बालकनी के लकड़ी के दरवाजे की जानिब से अपनी तरफ आते देखा। वो औरत के रूप में थी और उसने गुलाबी रंग की बड़ी खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी और बालों के जूड़े में तरनारी के गुलाबी फूल भी सजाए हुए थे। जब वो बालकनी में आई तो वहां बैठे हुए लोग उसकी तरफ देखने लगे। कर्नाटक का बदमाश टूरिस्ट भी उसे देखकर देखता ही रह गया। राक्षसनी सीधी इमरान के पास आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। इमरान ने कहा, मैं तो मायूस हो गया था। ये राक्षसनी बोली, हम लोग जो वादा करते हैं वो पूरा भी करते हैं। इमरान ने कहा, तुम जरूर कजली के तिलिस्मी पुतले का सुराग लगाने में कामयाब हो गई हो। राक्षसनी ने कहा, सुराग तो मैंने लगा लिया है, मगर ये काम मैं अकेले नहीं कर सकूंगी, उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इमरान बोला, मैं तैयार हूं, तुम जिस तरह मुझे कहोगी मैं वही करूंगा, कहो मुझे क्या करना होगा। राक्षसनी चुड़ैल बालकनी के नीचे बारिश में भीगते फूलों भरे पौधों को देख कर रही थी। कहने लगी, मुझे उस रोज भी महसूस हुआ था और इस वक्त भी मुझे महसूस हो रहा है कि तुमने अपने जिस्म के साथ कोई तावीज बांध रखा है। यही वजह थी कि मैं उस रोज औरत के रूप में भी तुम्हारे करीब एक खास हद से आगे नहीं आई थी और आज भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। ऐसी कोई बात है क्या? इमरान बोला, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, मैंने अपने बाजू के साथ अल्लाह के पाक नाम का तावीज बांध रखा है। राक्षसनी चुड़ैल ने कहा, यह बड़ी अच्छी बात है तुम्हारे लिए, मगर आगे जो मुहिम तुम्हें दरपेश है, यानी जिस मुहिम पर तुम मेरे साथ जाने वाले हो, उसकी राह में तुम्हारे इस तावीज़ की वजह से ज़बरदस्त रुकावट पैदा हो सकती है, क्योंकि इस मुहिम के दौरान तुम्हें कदम कदम पर चुड़ैलों और भूतों और आसिबों और उनके तिलिस्म से वास्ता पड़ेगा। तुम्हारे इस तावीज़ की वजह से ये मखलूक वहाँ से फरार हो जाएगी और जो चुड़ैलें कजली बदरू के तिलिस्मी पुतले की हिफाजत कर रही हैं, वो भी पुतले को लेकर वहाँ से गायब हो जाएंगी। शायद फिर तुम कभी तिलिस्मी पुतला हासिल करने में कामयाब ना हो सको। इमरान बोला, लेकिन ये तावीज़ तो मैंने अपनी हिफाजत के लिए बांधा हुआ है। राक्षसनी चुड़ैल ने कहा, मैं जानती हूँ और मैं समझती हूँ कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी अपने आप को चुड़ैलों और आसिबों से बचाने के लिए ऐसा ही करती, लेकिन यह हालात दूसरी किस्म के हैं। तुम मेरे साथ हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी किस्म का कोई खतरा महसूस नहीं करना चाहिए। और अगर तुमने तावीज़ अपने पास ही रखा तो बहुत मुमकिन है कि पुतले की हिफाजत करने वाली चुड़ैलें पुतले को लेकर गायब हो जाएं।
मैं औरत के इंसानी रूप में होने की वजह से अभी तक बची हुई, इसके बावजूद मैं तुम्हारे करीब आने से डरती हूँ। इमरान ने कहा, तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? राक्षसनी चुड़ैल ने कहा, तुम्हें आर्जी तौर पर कुछ वक्त के लिए ये तावीज़ उतार कर किसी महफूज जगह पर रख देना होगा, जहाँ से तुम अपनी मुहिम में कामयाब होने और तिलिस्मी पुतला हासिल करने के बाद इसे दोबारा अपने बाजू पर बांध सकते हो। ये अमल महज 2 दिनों के लिए होगा, क्योंकि हमें तिलिस्मी पुतला लाने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ही लगेंगे। इमरान को राक्षसनी की बात में कोई मशकूक बात दिखाई न दी। उसने समझा कि वो ठीक कह रही है, आगे उसका वास्ता चुड़ैलों से पड़ने वाला है। अगर वो भागी गई और तिलिस्मी पुतला भी साथ ले गई तो फिर उसकी मुहिम का क्या फ़ायदा होगा? उसने राक्षसनी से कहा, लेकिन तुम्हें मुझे कोई यकीन दिलाना होगा कि तावीज़ उतारने की सूरत में मुझे कोई मोहल्लिक किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आखिर मैं किस्म किस्म के भूतों और चुड़ैलों की दुनिया में जा रहा हूँ। राक्षसनी चुड़ैल ने कहा, इसका मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और तुम हर तरह से मेरे साथ महफूज रहोगे। इमरान बोला, ठीक है, मैं जाने से पहले अपना तावीज़ उतार कर किसी दरख्त की ऊंची शाख के साथ बांध दूंगा, जहाँ से वापसी पर मैं उसे दोबारा अपने बाजू पर बांध दूंगा। राक्षसनी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे पुतले की तलाश की मुहिम की कामयाबी के लिए ऐसा करना जरूरी है। इमरान ने कहा, अब मुझे बताओ कि तुमने बदरू कजली के पुतले के बारे में क्या सुराग लगाया है और हमें और ख़ास तौर पर मुझे क्या करना होगा। अभी इमरान ने जुमला इतना ही अदा किया था कि वही कर्नाटकी अयाश तबा सयाह उठकर इमरान की मेज़ पर आकर राक्षसनी के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और राक्षसनी की तरफ आशिकाना नज़रों से देखते हुए बोला, देवी जी, आप इतनी सुंदर हैं कि आकाश की अप्सरा लगती हैं। राक्षसनी खामोश निगाहों से उस अयाश तबा हिंदू सयाह को देखने लगी। उसने कोई जवाब न दिया। उससे उस बदमाश का हौसला बढ़ गया और उसने राक्षसनी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आप मेरे साथ एक प्याली कॉफ़ी की पियेंगे? ये बड़ी बदतमीजी की बात थी कि आदमी एक दूसरी मेज़ पर आकर किसी अजनबी खातून से इस किस्म की सोकियाना बातें शुरू कर दे। इमरान को गुस्सा आ गया। उसने कर्नाटकी स्याह को डांटते हुए कहा, तुम्हें तमीज़ से बात करनी चाहिए, ये मेरी मेहमान है। कर्नाटकी स्याह ने हाथ को झटकते हुए कहा, अरे तुम कौन होते हो हमारे बातों में दखल देने वाले? जब देवी जी कुछ नहीं कह रही तो तुम्हें क्या तकलीफ हुई है? इमरान कुछ कहने लगा तो राक्षसनी ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। उसी वक्त इमरान ने राक्षसनी की आंखों में एक ऐसी चमक देखी जो अपने शिकार को देखकर किसी भूखे दरिंदे की आंखों में आ जाती है। राक्षसनी ने कर्नाटकी स्याह का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, अगर तुम मुझे अपने कमरे में कॉफ़ी पिलाने का वादा करो तो मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। वो बदमाश तो फौरन तैयार हो गया, बोला, देवी जी, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी कि आप मेरे साथ मेरे कमरे में बैठकर कॉफ़ी पिए, आइए मेरे साथ। राक्षसनी ने इमरान को एक नज़र देकर कहा, तुम इसी जगह बैठो, मैं आती हूँ भी। बदमाश हिंदू सयाह ने बड़ी फातिहाना निगाहों से इमरान की तरफ देखा और राक्षसनी को साथ लेकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। उस शख्स को मालूम ही नहीं था कि वो किस बला को अपने साथ ले जा रहा है। इमरान ने राक्षसनी की आंखों की चमक देखकर ही अंदाजा लगा दिया कि ये कुछ ना कुछ अब करने वाली है। वो चुपचाप बालकनी में बैठा रहा। बारिश मध्यम पड़ गई थी और होटल के लान की बत्तियां रोशन हो गई थी। 3-4 मिनट के बाद ही उसने देखा कि राक्षसनी बालकनी में बदमाश से आके कमरे से निकलकर उसकी तरफ आ रही है। वो इमरान के पास आकर बोली, चलो तुम्हारे कमरे में बैठकर बातें करते हैं। वो कमरे में आकर बैठ गए। इमरान ने कुदरती तौर पर पूछा, वो बदमाश कहाँ है? राक्षसनी ने कहा, अब वो कहीं भी नहीं है। इमरान ने तजस्सुस से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? राक्षसनी बोली, मेरा मतलब है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है और तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैंने उसे इस तरह खत्म कर दिया है कि उसकी लाश तो क्या, उस बदमाश का नामो निशान तक किसी को नहीं मिलेगा। ऐसे बदमाशों का यही अंजाम होना चाहिए। इमरान जानता था कि राक्षसनी एक खतरनाक और बड़ी ताकतवर चुड़ैल है और वो ऐसा कर सकती है। उसने इसके बाद इस मौजू पर कोई बात ना की, बल्कि अपने असल मौजू की तरफ आते हुए राक्षसनी से पूछा, अब हमें तिलिस्मी पुतले के सिलसिले में कहाँ जाना होगा? राक्षसनी इमरान के सामने वाली कुर्सी पर बैठ कर कहने लगी, इससे पहले कि मैं तुम्हें यह बताऊं कि हमें तिलिस्मी पुतले को कहाँ ले जाना होगा, तुम अपना तावीज़ उतार कर किसी दरख्त की शाख पर बड़ी एहतियात से बांध कर मेरे पास आ जाओ, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी कि हमें क्या करना है। इमरान पहले ही कायल हो चुका था कि उसे अपना तावीज़ किसी महफूज जगह पर रखकर ही उसके साथ जाना होगा। चुनाचे वो उठकर होटल के पीछे जो दरख्तों का झुंड था वहां गया। उसने खुदा से माफ़ी मांगते हुए अपने बाजू पर से तावीज़ उतारा और एक दरख्त की ऊंची शाख पर बांध दिया। जब वो वापस राक्षसनी चुड़ैल के पास आया तो राक्षसनी इमरान के जिस्म से जो ताकतवर शुआएं पहले निकलती महसूस हो रही थी, अब वो खत्म हो चुकी थी। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसने किसी बहाने इमरान के हाथ को उंगलियों से छुआ। उसे कोई झटका न लगा। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह के पाक नाम का तावीज़ अब इमरान के पास नहीं है। अब वो एक और बात की तस्दीक करना चाहती थी। वो ये मालूम करना चाहती थी कि क्या वाकई इमरान वही इंसान है जिसके बाएं बाजू पर चांद ग्रहण के 2 खास दायरे बने हुए हैं, क्योंकि एक ऐसा इंसान ही बदरू कजली के तिलिस्मी पुतले पर हाथ डाल सकता था। राक्षसनी चुड़ैल ने इमरान से कहा, मैं तुम्हारे बाजू पर चांद ग्रहण के दोनों निशान देखना चाहती हूँ ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि तिलिस्मी पुतले का तिलिस्म तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इमरान ने आस्तीन ऊपर करके राक्षसनी को अपने बाजू पर कुदरती तौर पर बने हुए चांद ग्रहण के दोनों दायरों के निशान दिखाए।
राक्षसनी ने मुतमईन होकर कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि बदरू औरत का ताकतवर से ताकतवर तिलिस्मी मंत्र भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये वो तिलिस्मी मंत्र है कि उनका मुकाबला मैं भी नहीं कर सकती। इमरान बोला, अब जल्दी से बताओ कि तिलिस्मी पुतला बदरू औरत ने किस जगह रखा हुआ है। राक्षसनी चुड़ैल ने कहा, यहाँ से बहुत दूर लंका के एक घने जंगल में एक बुद्ध मत वालों की वीरान गुफा है। उस गुफा के नीचे एक तारीख तहखाना है जहाँ सांप और बिच्छू रहते हैं। बदरू कजली ने अपना पुतला उसी तहखाने के कोने में दफन किया हुआ है। इमरान बोला, उस जंगल में हम कैसे पहुंचेंगे? क्या वहां तक कोई रेलगाड़ी वगैरह जाती है? राक्षसनी ने हंसकर कहा, वहां रेलगाड़ी तो क्या, कोई इंसान पैदल भी नहीं जा सकता। वो इतना घना जंगल है कि पैदल चलने का भी रास्ता नहीं मिलता। इमरान ने पूछा, फिर हम वहां कैसे जाएंगे? राक्षसनी बोली, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने जो गुलाबी साड़ी वाली औरत बैठी है वो श्रीलंका के जंगलों की सबसे ताकतवर और चुड़ैलों की महारानी चुड़ैल है। मैं तुम्हें पलक झपकन में अपने साथ वहां ले जाऊंगी। अपने कमरे में चलो। इमरान उठकर राक्षसनी के साथ अपने छोटे से कमरे में आ गया। राक्षसनी ने इमरान का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आंखें बंद कर लो, जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना। इमरान ने आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे ऊपर उछाल दिया हो। उसके बाद उसे कोई होश न रहा। जब उसे होश आया तो उसे अपने पांव जमीन पर लगे हुए महसूस हुए। उसे राक्षसनी की आवाज सुनाई दी, अब आंखें खोल दो। इमरान ने आंखें खोल दी। क्या देखता है कि वो रात की तारीकी में गुंजान दरख्तों के नीचे खड़ा है। उन दरख्तों की शाखें झुककर जमीन को छू रही हैं और बाज शाखों ने जमीन में धंसकर वहीं जड़ें पकड़ ली थी। राक्षसनी उसके पास ही खड़ी थी। इमरान ने अंधेरे में देखने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या ये वही तिलिस्मी पुतले वाला जंगल है? राक्षसनी चुड़ैल ने जवाब दिया, हाँ ये वही जंगल है। इमरान ने सवाल किया, वो वीरान गुफा कहाँ है? राक्षसनी चुड़ैल बोली, गुफा यहाँ से दूर नहीं है, मैं तुम्हें वहीं ले जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे चलते आओ। राक्षसनी चुड़ैल आगे चल पड़ी। इमरान उसके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ता दुश्वार गुजार था। इमरान को बार बार ये ख्याल आ रहा था कि तावीज़ उतार देने के बाद वो एक तरह से निहत्था हो गया है। अब किसी भी वक्त वो किसी बदरू या किसी चुड़ैल के तिलिस्म में फंस सकता है। फिर उसे ख्याल आया कि हो सकता है मुश्किल के वक्त जादूगरनी की लाश उसकी मदद को पहुंच जाए, क्योंकि उसने इमरान से कहा था कि तुम फिक्र ना करो, मैं इसमें तुम्हारी हिफाजत करूंगी। लेकिन इस ख्याल से उसका दिल एक बार फिर डूबने लगता कि खुद जादूगरनी की लाश ने इतराफ़ किया था कि वो बदरू औरत कजली की तिलिस्मी ताकत से मुकाबला नहीं कर सकती। अब वो सिर्फ और सिर्फ खुदा से मदद का तलबगार था। जंगल पर मौत की खामोशी तारी थी। किसी वक्त इमरान को ऐसे सुनाई देता जैसे कहीं हल्की हल्की सरगोशी की आवाज़ें उसके साथ साथ चल रही हैं। किसी वक्त कोई औरत तेज तेज लंबे सांस ले रही है। राक्षसनी चुड़ैल उसे एक दो कदम आगे चल रही थी। इमरान जानता था कि यह सारा खेल बदरूहों का है और सारे का सारा जंगल आसिफज़दा है। यहाँ इस किस्म की आवाज़ों का सुनाई देना कोई अजब बात नहीं थी। फिर भी इमरान अपने दिल में खौफ ज़रूर महसूस कर रहा था। उसको ये भी एहसास था कि उसके साथ जो अल्लाह ताला के पाक नाम के तावीज़ की ताकत थी वो भी उसका साथ छोड़ चुकी है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि उसे किसी हालत में भी तावीज़ को अपने जिस्म से अलग नहीं करना चाहिए था, मगर अब वक्त गुजर चुका था। राक्षसनी चुड़ैल एक स्याह फाम नोकीली चट्टान के पास आकर रुक गई। इमरान गौर से चट्टान को देखने लगा। अंधेरे में 10-15 फीट ऊंची नोकीली चट्टान जमीन से निकलकर एक तरफ को झुक गई थी। इमरान को ऐसे लगा जैसे ये कोई खौफनाक भूत है जो झुककर नीचे देख रहा है। राक्षसनी ने चट्टान की तरफ इशारा किया और इमरान से कहा, मैं इस चट्टान के आगे नहीं जा सकती, क्योंकि इसके आगे बदरू कजली के खतरनाक तिलिस्म का दायरा खिंचा हुआ है। मैं आगे गई तो कजली का तिलिस्म मुझे जलाकर राख कर देगा। इमरान बोला, फिर आगे कौन जाएगा? राक्षसनी बोली, आगे सिर्फ तुम ही जा सकते हो। इमरान ने डरते हुए कहा, लेकिन मेरे पास तो अब मुझे इन बदरूओं के तिलिस्म से बचाने वाला तावीज़ भी नहीं है, मैं आगे कैसे जा सकता हूँ? राक्षसनी चुड़ैल कहने लगी, तुम्हारे पास दो ताकतें हैं। एक तो तुम्हारे बाजू पर चांद ग्रहण के निशान हैं जो करोड़ों में से किसी एक इंसान के बाजू पर ही होते हैं। दूसरा, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे अंदर बदरू कजली की कुछ ताकत मौजूद है। मुझे नहीं मालूम कि यह ताकत तुम्हारे अंदर कैसे और कहाँ से आ गई, मगर यह ताकत मौजूद है और तुम्हें बदरू कजली के तिलिस्मी मंत्रों के शोलों से महफूज रखेगी। इमरान को याद आ गया कि जादूगरनी की लाश ने उसे बताया था कि तिलिस्मी पुतले का एक कील पुतले के सर से निकलकर उसके सर में घुसकर गायब हो गया था। उसकी वजह से उसके अंदर बदरू औरत की ना सिर्फ कुछ ताकत आ गई है, बल्कि उसके अंदर उसके तिलिस्म का मुकाबला करने की कुव्वत भी पैदा हो गई है। इमरान ने पुतले के कील के बारे में राक्षसनी चुड़ैल को कुछ न बताया और कहा, मुझे क्या करना होगा? वो गुफा कहाँ है जहाँ पुतला दफन है? राक्षसनी चुड़ैल बोली, वही मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। सुनो, तुम जब इस चट्टान के पीछे जाओगे तो तुम्हें अपने बाएं जानिब स्याह काले रंग की जमीन नजर आएगी। वहां पाँव मत रखना। वो जमीन नहीं बल्कि बहुत बड़ी खतरनाक दलदल होगी जो बड़े से बड़े हाथी को भी एक लम्हे में निकल सकती है। यहाँ से बदरू औरत कजली के तिलिस्म का हिसार शुरू हो जाता है। हो सकता है तुम्हें वहां हल्के हल्के झटके लगने शुरू हो जाएं, मगर तुम घबराना नहीं। ये बदरू कजली के तिलिस्म का असर होगा जो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तुम दलदली जमीन के किनारे किनारे चलते जाओगे तो 15-20 कदमों के बाद तुम्हें एक खस्ता हाल खंडर नजर आएगा। यही खंडर वो गुफा है जिसके तहखाने में बदरू कजली ने अपना तिलिस्मी पुतला दफन किया हुआ है। इमरान धड़कते हुए दिल के साथ राक्षसनी चुड़ैल की बातें सुन रहा था और बार बार अपने खुश्क होठों पर जुबान फेरता जा रहा था।
उसे महसूस हो रहा था कि चुड़ैल उसे जिस जगह भेज रही है शायद वो वहां से जिंदा वापस ना आ सके। राक्षसनी चुड़ैल कह रही थी, खस्ताहाल गुफा के खंडर की पिछली दीवार में तुम्हें एक सुरंग नमा रास्ता मिलेगा, तुम उसमें दाखिल हो जाओगे। ये सुरंग ज्यादा लंबी नहीं, वहां दाखिल होते ही मुमकिन है तुम्हें 2-4 जबरदस्त झटके लगें। ये बदरू औरत कजली का तिलिस्म होगा, तुम बिल्कुल नहीं घबराना। ये जबरदस्त तिलिस्म भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सुरंग की दीवार के पास जाकर खत्म हो जाएगी। उस दीवार में एक जगह छोटा सा तंग जीना नीचे तहखाने में जाता है। उस तहखाने के सामने वाले कोने में बदरू कजली ने अपना तिलिस्मी पुतला दफन किया हुआ है। वहां तुम्हें सांपों की फुनकाने सुनाई देंगी। हो सकता है जहरीले बिच्छू भी आसपास चलते फिरते नजर आ जाए, मगर तुम डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको तहखाने के बिच्छू और सांप भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तुम कोने में से मिट्टी हटाकर पुतला निकालकर यहाँ ले आओगे। मैं इसी चट्टान के पास तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद हम इसी जगह तिलिस्मी पुतले को जलाकर राख कर देंगे और फिर दुनिया के इंसानों को बदरू औरत कजली के अजाब से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। अब तुम बेफिक्र होकर जाओ। ये एक हकीकत थी कि इमरान बेफिक्र नहीं था, वो सख्त फिक्रमंद था। अल्लाह के पाक नाम के तावीज़ से जुदा हो जाने के बाद उसका दिल कह रहा था कि वो मनुष्य आसेबी मखलूक की पैदा करदा बलाओं में गिर चुका है, मगर वो मजबूर था कि राक्षसनी चुड़ैल उसे जो कह रही है उस पर अमल करता जाए। चुनाचे उसने दिल में खुदा को याद किया, अपने गुनाहों की माफी मांगी और भूत नमा स्याह चट्टान की तरफ कदम बढ़ाया। उस मनुष्य अंधेरे जंगल में वो खुद एक मनुष्य भूत लगने लगा था। स्याह चट्टान की दूसरी तरफ दलदली जमीन शुरू हो जाती थी। इमरान रुक गया और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। वहां जमीन बिल्कुल स्याह थी। उसने चंद कदम चलकर झुककर जमीन को देखा। जमीन स्याह कीचड़ के तालाब की तरह थी। ये कीचड़ बड़े डरावने अंदाज में ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। ये हलाकत खेज दलदल थी जो हाथियों को भी आनन फानन निकल जाती थी। इमरान एक तरफ हटकर दलदल के किनारे किनारे चलने लगा। वो फूंक फूंक कर कदम उठा रहा था। खौफनाक दलदल में से सांस की आवाज आ रही थी। इमरान के रोंगटे खड़े हो गए थे। अपने आप को इतना खौफजदा और गैर महफूज इमरान ने कभी महसूस नहीं किया था। चलते चलते वो भयानक दलदली तालाब से आगे निकल गया। उसने रुककर गिरदो पेश में निगाह दौड़ाई। उसे थोड़े फासले पर अपने सामने एक होलनाक स्याह भूत सर उठाई खड़ा दिखाई दिया। उसने गौर से देखा, यह स्याह भूत वीरान गुफा का खंडर था। उसे उसी खंडर के तहखाने में जाना था। अपने आप को निहत्ता महसूस करने के बाद कुदरती तौर पर वो गुफा के खंडर की तरफ बढ़ते हुए घबरा रहा था, लेकिन ये ख्याल उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था कि किसी तरह तिलिस्मी पुतला हासिल करके खल्के खुदा को बदरू औरत की दरिंदगियों से निजात दिलाए। अल्लाह पाक के नाम वाले तावीज़ से अलग होने के बाद वो अपने आप को एक कमजोर इंसान महसूस करने लगा था। उसे एक ख्याल बार बार आ रहा था कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाए, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। 10-15 सेकंड तक वो अपनी जगह पर खड़े खड़े गुफा के खंडर की भूतनुमा दीवार को तकता रहा, फिर हौसला करके उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया। वो खंडर के पीछे आ गया और गौर से झुककर दीवार को तकने लगा। उसे एक जगह स्याह शगाफ दिखाई दिया। यही सुरंग का दहाना था। उसे उस सुरंग में दाखिल होना था। वो डर रहा था। उस पर दहशत तारी होने लगी थी। उसने सख्त मायूसी के आलम में पीछे मुड़कर देखा। पीछे सिवाय तारीकी और सनसनाते हुए अंधेरे के और कुछ नहीं था। खुदा जाने वो कौन सी ताकत थी जिसने उसे सुरंग की तरफ धकेल दिया। जैसे ही वो सुरंग में दाखिल हुआ उसे एक जबरदस्त झटका लगा। वो इस झटके से पीछे तो न गिरा, लेकिन एक अन्वी जगह पर खड़े खड़े सुन्न हो गया। कुछ देर तक उसी जगह बुत की तरह खड़े रहने के बाद उसने हिम्मत की और सुरंग में दाखिल हो गया। उसे एक बार फिर वही जबरदस्त झटका लगा था, मगर वो सुरंग में दाखिल हो चुका था। शायद ये उस कील का असर था जो तिलिस्मी पुतले के सर में से निकलकर इमरान के सर में घुस गया था कि उसे अंधेरे में भी नजर आने लगा था। वो सुरंग में डर डर कर चल रहा था। सुरंग की छत के साथ लटके हुए जाले उसके चेहरे से बार बार टकरा रहे थे, जिन्हें वो हाथ से पीछे हटाता जाता था। एक जगह सुरंग खत्म हो गई और सामने दीवार आ गई। राक्षसनी चुड़ैल ने उसे बताया था कि उस दीवार में एक तंग व तारीक जीना नीचे तहखाने में जाता है। इमरान ने दीवार के करीब होकर पूरी आंखें खोलकर उसका जायजा लिया। एक जगह उसे तंग शगाफ दिखाई दिया जिसके धाने पर मकड़ियों ने जाले बुन रखे थे। साफ लग रहा था कि उस शगाफ में एक मुद्दत से कोई दाखिल नहीं हुआ। इमरान ने दोनों हाथों से जाले को उठाया। एक जीना नीचे जाता था। इमरान बड़ी एहतियात के साथ जीना उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था उसे नीचे से ऐसी आवाजें आनी थी जैसे सांप फुनकार रहे हो। वो जीना उतरकर तहखाने में आ गया। यहाँ इस कदर गहरी तारीकी थी कि इमरान को भी बहुत धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। तहखाना एक बड़ी कब्र की तरह लग रहा था। उसके छत से लंबे लंबे जाले लटक रहे थे। उसने अंधेरे में गर्द आलूद फर्श पर छोटे छोटे स्याह बिच्छुओं और सांपों को रेंगते देखा। खौफ से उसका खून सर्द हो गया। लगता था कि उसने जैसे ही आगे कदम रखा ये सारे के सारे सांप और बिच्छू से चिमट कर उसे डसना शुरू कर देंगे और वो उसी जगह खत्म हो जाएगा। लेकिन मंजिल के इतना करीब आकर वो वापस नहीं जाना चाहता था। दूसरे राक्षसनी चुड़ैल ने उसे यकीन दिलाया था कि ये सांप और बिच्छू उसे कुछ नहीं कहेंगे। इमरान ने डरते डरते कदम तहखाने के सामने वाले कोने की तरफ बढ़ाया जहां मिट्टी की एक छोटी सी ढेरी बनी हुई थी। तिलिस्मी पुतला उसी जगह दफन था। जैसे ही इमरान ने आगे पांव रखा सांप और बिच्छू भुनकारते हुए इधर उधर हो गए। उसका हौसला बढ़ गया। वो सीधा कोने वाली मिट्टी की ढेरी के पास आकर बैठ गया और हाथों से मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। अंधेरे में सांप और जहरीले बिच्छू फुनकारते मारते उसके इर्द गिर्द रिंग रहे थे। इमरान जल्दी जल्दी मिट्टी हटा रहा था।
1 फुट मट्टी हटाने के बाद उसके हाथ किसी सख्त चीज से टकराए। उसके हाथ और तेजी से चलने लगे। थोड़ी ही देर के बाद उसने तिलिस्मी पुतला बाहर निकाल लिया। जैसे ही पुतला उसके हाथ में आया, उसको जैसे किसी ने जोर से पीछे को धक्का दिया। वो पीछे को गिर पड़ा, मगर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने पुतले को दोनों हाथों में बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। यह बदरू औरत का ही पुतला था। उसके सीने और सर में छोटी छोटी कीलें ठुकी हुई थी, जो आधी बाहर निकली हुई थी। उन्हीं में से पहली दफा एक कील उड़कर उसके सर में धंस गई थी, जो अब बकौल जादूगरनी की लाश के इमरान के जिस्म में खून के साथ गर्दिश कर रही थी। मालूम नहीं था इसमें कहां तक सच्चाई थी। पुतले में से गर्मी की लहरें निकल रही थी। इमरान जल्दी से तहखाने से निकलकर सुरंग में आ गया। सुरंग में उसका लर्जा देने वाली चीखों ने इस्तकबाल किया। ये चीखें सुरंग की चारों तरफ से बुलंद हो रही थी, मगर इमरान उनकी परवाह किए बगैर सुरंग में तेज तेज कदमों से चलता गया। सुरंग के धाने के पास आया तो उसे एक और धक्का लगा, मगर वो संभल गया। अब वो गुफा के खंडर से बाहर निकल आया। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे तिलिस्मी पुतले में जान पड़ गई है और वो उसके हाथ में से निकलने की कोशिश कर रहा है, मगर इमरान ने उसे दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ रखा था। ये पुतला सारे फसाद की जड़ था और वो उसे फौरन जलाकर राख कर देना चाहता था। अंधेरी रात में गौर से देखता हुआ दलदली तालाब के करीब से भी गुजर गया और सयाह चट्टान उसके सामने थी, जहां राक्षसनी चुड़ैल बेताबी से उसकी राह देख रही थी। राक्षसनी चुड़ैल ने इमरान को अंधेरे में अपनी तरफ आते देख लिया। जैसे ही इमरान सयाह चट्टान की ओर से निकला, राक्षसनी चुड़ैल ने आगे बढ़कर कहा, मैं जानती हूँ तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। ये मनुष्य पुतला हमें दे दो ताकि मैं इसे फौरन जलाकर भस्म कर दूं और दुनिया वालों को इसकी मुसीबत से निजात मिल जाए। इमरान खुद भी यही चाहता था। उसने कुछ सोचे समझे बगैर बदरू औरत का तिलिस्मी पुतला राक्षसनी के हवाले कर दिया। पुतला हाथ में आते ही राक्षसनी चुड़ैल आंखों में एक तेज रोशनी बिजली की तरह चमकी और उसने एक भयानक कहका लगाते हुए कहा, कजली कजली, आज तुझसे इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। अब तू मुझसे बचकर नहीं जा सकेगी। इमरान सहम कर राक्षसनी को देख रहा था। राक्षसनी ने इमरान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी आसमानी बिजली की तेज चमक बिजलियां बरसा रही थी। कहने लगी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है इमरान। तुमने मेरी खातिर वो काम किया है जो तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा नहीं कर सकता था। इमरान बोला, मैं पुतला ले आया हूँ। अब इसे मेरे सामने जलाकर भस्म कर दो ताकि दुनिया के बेगुनाह इंसानों को इसके मनहूस असरात से छुटकारा मिल सके। राक्षसनी चुड़ैल ने एक झटके से अपने सर के बाल खोल दिए और दाएं बाएं गर्दन हिलाते हुए बोली, लेकिन इसको भस्म करने से पहले मैं तुम्हें इस कामयाबी की खुशी में एक इनाम देना चाहती हूँ। इमरान ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मेरा इनाम यही है कि इस पुतले को इसी जगह इसी वक्त जलाकर राख कर दो। राक्षसनी चुड़ैल ने गुस्से से कहा, नहीं, तुम्हें तुम्हारा इनाम पहले मिलेगा। इमरान ने महसूस किया कि राक्षसनी की आवाज बदल गई थी। वो भारी और डरावनी हो गई। वो बोला, मुझे तुमने जो इनाम देना है जल्दी से दे दो और खुदा के लिए इस मनहूस पुतले को भस्म कर दो। राक्षसनी चुड़ैल का चेहरा भी बिगड़ना शुरू हो गया। इमरान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उस पर एक दहशत सी तारी हो रही थी। पुतला राक्षसनी चुड़ैल के हाथ में था। उसकी आंखों में बिजलियां चमक रही थीं। उसने इमरान से कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। जब तक मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम न दे लूं, अपनी आंखें मत खोलना। इमरान अजीब उलझन में था कि राक्षसनी चुड़ैल ये क्या ड्रामा कर रही है, लेकिन उसका हुक्म मानने के सिवाय कोई चारा भी नहीं था। उसने आंखें बंद कर लीं। जैसे ही इमरान ने आंखें बंद की, उसके कानों में शां शां की आवाजें आने लगी, जैसे आंधी चल रही हो। फिर उसे राक्षसनी की आवाज सुनाई दी, अब आंखें खोलकर अपना इनाम देखो। इमरान ने आंखें खोल दी। आंखें खोलने के बाद उसने जो कुछ देखा और महसूस किया, उससे उस पर खौफ और दहशत के मारे उसका सर चकरा गया। उसने देखा कि वो गुप अंधेरे में है। उसे फौरन महसूस हुआ कि वो सिर्फ अपनी गर्दन हिला सकता है, अपने जिस्म को नहीं हिला सकता। उसने अपने बाजू और टांगें हिलाने की कोशिश की तो उस पर यह हैबतनाक इंकशाफ हुआ कि वो गर्दन तक जमीन के अंदर धंसा हुआ है और जमीन पत्थर की तरह सख्त है, जिसमें वो अपने जिस्म के किसी हिस्से को जरा सा भी नहीं हिला सकता। सिवाय गर्दन और उसके सर के उसका सारा बदन पत्थर जैसी सख्त जमीन में धंस कर पत्थर बन चुका था। उसका फौरी दहशतनाक रद्द-ए-अमल ये हुआ कि इमरान के हलक से बेख्तियार एक डरावनी चीख निकल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने माँ बाप और रुखसाना याद आ गए। वो बेख्तियार रो रो कर खुदा से अपने गुनाह की माफी मांगने लगा। गुप अंधेरे में वो न जाने कब तक रोता रहा, यहाँ तक कि उसके आंसू भी खुश्क हो गए। उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई और वह मुंह ही मुंह में आंखें बंद करके बुड़बुड़ाने लगा। न जाने वो क्या कह रहा था, किससे मुखातिब होकर कह रहा था। अपने अल्फाज खुद उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। ये रात थी या दिन था, उसे कोई खबर नहीं थी। वक्त गुजर रहा था या थम गया था, उसका एहसास भी खत्म हो गया था। इतना वो समझ गया था कि राक्षसनी चुड़ैल ने उसके साथ फरेब किया है और तिलिस्मी पुतला हासिल करने के लिए उसको अपना आलाकार बनाया है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। आंखें बंद किए न जाने कब तक गर्दन एक तरफ ढलकाई इमरान वैसे ही पड़ा रहा। फिर उसे अपनी बंद आंखों में रोशनी का एहसास हुआ। उसने जल्दी से आंखें खोल दी और गर्दन उठाकर देखा कि उसके इर्द गिर्द बड़ी धीमी रोशनी का गुबार सा फैल गया था। उसने देखा कि वो एक बंद जगह पर है और जमीन में गर्दन तक धंसा हुआ है। वो अपने पीछे नहीं देख सकता था। उसके सामने काली स्याह दीवारें थी। एक दीवार के ऊपर कोने में किसी सुराख में से रोशनी की एक लकीर सी अंदर आ रही थी। धीमी रोशनी का गुबार उस रोशनी की लकीर का था।
खुदा जाने रोशनी कहाँ से आ रही थी, सूरज की रोशनी थी या बाहर कोई लैंप या मशल जल रही थी। अपने आप को इस हालत में देखकर इमरान को रोना आ गया, मगर वो राक्षसनी के तिलिस्म में फंस चुका था। वो बहुत पछता रहा था कि उसने अल्लाह के पाक नाम वाला तावीज़ अपने जिस्म से अलग क्यों किया। शायद उसी की सजा उसे मिल रही थी। अगर वो तावीज़ उसके बाजू पर बंधा होता तो उस पर राक्षसनी के तिलिस्म का कभी असर नहीं हो सकता था, लेकिन राक्षसनी चुड़ैल ने बड़ी मक्कारी से उसको तावीज़ से महरूम कर दिया था। इमरान को अपने करीबी सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखा। उसकी गर्दन जमीन से थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। धुंधली नीम जान रोशनी में उसे एक तरफ से कोई चीज तेजी से रेंग कर अपनी गर्दन की तरफ पीछे की तरफ जाती नजर आई। दूसरे लम्हे हल्की सी फुनकार बुलंद हुई। इमरान का जहन खौफ के मारे सुन हो गया। ये सांप की फुनकार थी। फिर सांप जमीन पर रेंगता हुआ उसके अकब में से निकलकर उसके सामने आया और फन खोलकर कुंडली मारकर बैठ गया। इमरान ने दहशत के मारे आंखें बंद कर लीं, मगर वो कब तक आंखें बंद रखता। जब काफी देर बाद उसने आंखें खोली तो सांप उसी तरह फन खोले उसके सामने बैठा उसे मुसलसल तक रहा था। या अल्लाह पाक, मेरे गुनाह माफ फरमा दे, मुझसे बड़ी भूल हो गई। ये अल्फाज बेख्तियार उसकी जुबान पर आ गए। सांप बार बार जुबान बाहर निकालकर हल्की हल्की फुनकारें मारने लगा और साथ ही साथ अपनी कुंडली को घसीटते हुए इमरान के चेहरे के करीब आता जा रहा था। इमरान ने आंखें बंद कर ली और अपनी मौत की आरजू करने लगा। उसका निचला धड़ तो पहले ही बेजान होकर एक तरह से मर चुका था। अब वो चाहता था कि सांप उसे गर्दन पर डसकर उसे इस अजाब से निजात दिला दे जिसमें वो फंसा हुआ था। उसे सांप की फुनकार बहुत करीब से आने लगी। उसने आंखें खोल दी और उसके हलक से चीख निकल गई। सांप उसकी आंखों के बिल्कुल सामने था और उसकी बार बार बाहर निकलती हुई दोशाखा जुबान उसके होठों को छूने ही वाली थी। इमरान ने आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन लगता था कि मौत भी उससे मुंह मोड़ चुकी है। काफी देर बाद जब इमरान ने आंखें खोली तो सांप जा चुका था। उसने गर्दन घुमाकर देखा, सांप कहीं भी नहीं था। छत के पास से दीवार में से जो रोशनी की धुंधली सी लकीर निकल रही थी वो अब फीकी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर गुजरने पर वो लकीर रोशनी की बुझ गई और उस मौत की कोठरी में एक बार फिर गुब अंधेरा छा गया। इमरान के लिए सबसे बड़ी अज़ियत ये थी कि उसका एहसास जाग रहा था और वो मौत और हयात के दरमियान लटका हुआ था। ना वो जिंदा था ना वो मुर्दा था। वो अंधेरे में आंखें फाड़े देखने की कोशिश कर रहा था, मगर सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक अंधेरे में एक रोशनी चमकी और इमरान को कोई चीज जो हवा में मौलिक थी अपनी तरफ आती नजर आई। जब वो उसके नजदीक आई तो इमरान ने उसे पहचान लिया। ये जादूगरनी की लाश की खोपड़ी थी। इमरान के मुंह से बेख्तियार निकल गया, जादूगरनी, तूने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है, मुझे यहाँ से निकालो। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, तुम खुद इस मुसीबत में फंसे हो, मैंने तुम्हें मुसीबत में नहीं फंसाया। अगर तुम अपने बाजू पर से तावीज़ ना उतारते तो इस वक्त तुम्हारी ये हालत ना होती। मुझे तुम्हारी हालत देखकर तुम पर रहम आ रहा है, मगर अफसोस है मुझे कि मैं इस वक्त तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। इमरान ने कहा, मुझसे भूल हो गई, मैं इस पर पछता रहा हूँ, लेकिन खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालने का कोई रास्ता सोचो। खोपड़ी ने कहा, यह काम मेरी ताकत से बाहर है, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ भी नहीं सकती, मैं फिर आऊंगी। ये कहकर जादूगरनी की खोपड़ी गायब हो गई। इमरान के जहन को एक बार फिर मायूसियों के स्याह बादलों ने घेर लिया। वो जादूगरनी की लाश की तरफ से भी नाउम्मीद हो चुका था। उसे यकीन था कि वो भी उसकी मदद को नहीं आएगी। अपने माँ बाप, अपने घर और अपनी महबूबा मंगेतर रुखसाना को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब आंसू ही उसके रफीके गम थे। वक्त का उसे कोई अंदाजा नहीं था, दिन है या रात, शाम है या दोपहर। वहां वक्त का कोई निशान नहीं था। अंधेरा, अंधेरा और अंधेरा, सिवाय अंधेरे और मौत के सन्नाटे के और कुछ नहीं था। लगता था वक्त भी थम गया है, एक जगह आकर रुक गया है। किसी वक्त जो धुंधली रोशनी का एक नुक्ता छत के कोने में थोड़ी देर के लिए धुंधली सी रोशनी देने लगता, वो भी अब उसका साथ छोड़कर इमरान को गुब अंधेरों के हवाले कर गया था। न जाने कितना वक्त गुजर गया। वक्त गुजरा भी या नहीं, लेकिन इमरान को महसूस हो रहा था जैसे कई सदियां अंधेरे में गुजर गई हैं कि अचानक गुब अंधेरे में धीमी धीमी रोशनी का गुबार सा उभरने लगा। इमरान की आंखें अंधेरे में देख देख कर पत्थर हो गई थी। किसी वक्त उसे अंधेरा नजर आता था, किसी वक्त उसे अंधेरा भी नजर न आता था। आंखों के सामने चिंगारियां सी झड़ने लगती थी, लेकिन धुंधली रोशनी हुई तो उसने आंखें खोलकर गर्दन ऊपर कर ली। उसे कोने में जादूगरनी की खोपड़ी फजा में लटकी हुई दिखाई दी। खोपड़ी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे से कोई 5-6 फीट के फासले पर आकर खोपड़ी फजा में रुक गई। इमरान के दिल में उम्मीद की हल्की सी किरण रोशन हो गई। शायद जादूगरनी की खोपड़ी उसे वहां से निकालने की कोशिश करने वाली थी। गम और अंधों के दबाव से अब इमरान से पूरी तरह बोला भी नहीं जाता था। उसने कमजोर सी खुश्क आवाज में कहा, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए यहाँ आई हूँ। इमरान को खोपड़ी के इस फिक्रे पर एतबार न आया। उसके तने मुर्दा में जैसे एकदम जान सी बढ़ गई। उसने बेख्तियार होकर कहा, क्या तुम सच कह रही हो? जादूगरनी की खोपड़ी बोली, मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आई हूँ। मेरे गुरुदेव यातंजलि ने मुझे एक खास मंत्र बताया है। वो मंत्र राक्षसनी चुड़ैल के तिलिस्म को खत्म कर देगा और तुम आजाद हो जाओगे। इमरान ने कहा, खुदा के लिए जल्दी से वो मंत्र पढ़कर फूंको, मैं मौत के मुंह में पहुंच चुका हूँ। जादूगरनी की खोपड़ी कहने लगी, जब मैं मंत्र पढ़ना शुरू करूँ तो तुम अपनी आंखें बंद रखना, जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना।
इमरान कहने लगा, तुम जो कहती हो मैं वही करूंगा। जादूगरनी की खोपड़ी ने मंत्र के श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। इमरान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर तक उसे मंत्र पढ़ने की आवाज आती रही, फिर आवाज गायब हो गई और उसके कानों में तेज हवाओं का शोर बुलंद होने लगा। कुछ देर के बाद ये शोर भी थम गया और उसके चेहरे के साथ ठंडी हवा के झोंके टकराने लगे। साथ ही जादूगरनी की खोपड़ी की आवाज आई, आंखें खोल दो। इमरान ने आंखें खोल दी। क्या देखता है कि वो ट्रंक को माली वाले टूरिस्ट होटल के अपने छोटे से कमरे में पलंग पर लेटा हुआ है। कमरे में अंधेरा हो रहा है, बाहर से बारिश की आवाज आ रही है। इमरान ने जल्दी से अपने बाजुओं को टांगों को हिलाया तो ये देखकर उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसका जिस्म अब पत्थर के अंदर पत्थर बना हुआ नहीं था, बल्कि उसके जिस्म में दोबारा जिंदगी की लहर दौड़ गई थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गया और वहीं पलंग पर किबला रू होकर सजदे में गिर गया और खुदा का शुक्र बजा लाते उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जब उसका जी हल्का हो गया तो उसने सजदे में से सर उठाकर देखा कि कमरे में हल्की हल्की रोशनी का गुबार फैल रहा था। दूसरे ही लम्हे जादूगरनी की खोपड़ी पलंग की पाइंटी की जाने फजा में मौलिक नजर आई। इमरान ने कहा, तुमने मुझे राक्षसनी चुड़ैल की कैद से आज़ाद करवा के मुझ पर जो एहसान किया है वो मैं हमेशा याद रखूंगा। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, तुम राक्षसनी चुड़ैल की कैद से जरूर आज़ाद हो गए हो, लेकिन उसके जाल से अभी तक बाहर नहीं निकले हो। तुम अभी तक उसके जाल में ही फंसे हुए हो सकता है वो तुम्हें एक बार फिर अपने कब्जे में लेने के लिए तुम पर हमला करे। इमरान ने कहा, वो ऐसा क्यों करेगी? मैंने तो उसे बदरू औरत कजली का तिलिस्मी पुतला लाकर दे दिया है, अब वो मुझसे क्या चाहती है? जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, तुमने उसकी कैद से फरार होकर एक तरह से उसकी बदी की ताकत को शिकस्त दी है। वो महज तुमसे अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए तुम्हें हलाक करने की कोशिश करेगी। इमरान ने कहा, क्या तुम मुझे उसके शर से नहीं बचा सकती? जादूगरनी की खोपड़ी कहने लगी, मेरी इतनी ताकत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकती थी कि तुम्हें जमीन के अंदर से निकाल कर बाहर ले आऊं, वो मैंने कर दिया। इससे आके मेरी ताकत नहीं कि मैं राक्षसनी चुड़ैल का मुकाबला कर सकूं, जबकि उसके पास अब बदरू कजली की भी ताकत आ चुकी है। इमरान बोला, इसका मतलब है कि वो तो किसी भी वक्त मुझे फिर से अपने कब्जे में कर सकती है। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे जिस्म में बदरू कजली के तिलिस्मी पुतले का एक कील गर्दिश कर रहा है और तुम्हारे पास बदरू कजली की आधी ताकत अब भी मौजूद है। यही वजह है कि राक्षसनी चुड़ैल ने तुम्हें जमीन के अंदर जिंदा दफन जरूर कर दिया था, मगर वो तुम्हें हलाक नहीं कर सकी। अब भी वो तुम्हें हलाक नहीं कर सकेगी, मगर तुम पर कोई ऐसी हालत तारी करके तुम्हें किसी जगह फेंक देगी जो मौत से भी बदतर होगी। ना तुम जिंदों में होगे ना मुर्दों में होगे, और मुमकिन है कि मैं भी वहां तुम्हारी मदद करने ना पहुंच सकूं। इमरान परेशान हो गया। जादूगरनी की खोपड़ी ने उसे परेशान देखकर कहा, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ, ये अंगूठी तुम अपनी उंगली में पहने रखना। जब तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में होगी राक्षसनी चुड़ैल तुम्हें अपने कब्जे में नहीं कर सकेगी। इमरान ने कहा, मैं उसके तिलिस्म से कैसे बचूंगा? खोपड़ी बोली, तुम मुसलमान हो, हर मुसलमान के पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है। उस ताकत की उसे खबर हो या ना हो, लेकिन ये ताकत उसके अंदर मौजूद होती है, और वो ताकत मुसलमान का एक खुदा पर ईमान है। तुम अपने ईमान की ताकत से दुनिया की खतरनाक से खतरनाक जादूगरनी और चुड़ैल के तिलिस्म को शिकस्त दे सकते हो। इमरान को फौरन अपने तावीज़ का ख्याल आ गया। उसने कहा, मेरे पास अल्लाह के पाक नाम का तावीज़ है, मैंने उसे राक्षसनी की हिदायत पर उस होटल के पिछवाड़े एक दरख्त की शाख से लटका दिया था। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, वो तावीज़ दरख्त की शाख से गायब हो चुका है, क्योंकि तुमने तावीज़ को अपने बाजू से अलग करके उसकी बेअदबी की थी। अब वो तुम्हें वहां नहीं मिलेगा। इमरान पछताने लगा कि उसने ऐसा क्यों किया। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, उस वक्त तुम दो दुश्मनों के बीच में फंस चुके हो, एक राक्षसनी चुड़ैल है और दूसरी बदरू कजली है। राक्षसनी चुड़ैल तुम्हारी इसलिए दुश्मन बन गई है कि एक तो तुमने उसकी कैद से फरार होकर उसको शिकस्त दी है और उसकी तिलिस्मी ताकत को ललकारा है, दूसरे उसे ये डर है कि तुम्हारे अंदर बदरू औरत कजली की आधी ताकत मौजूद है और तुम किसी भी वक्त उस ताकत को दुगनी करके उसके कब्जे से तिलिस्मी पुतला छीन कर उसे हलाक कर सकते हो। बदरू औरत कजली तुम्हारी इसलिए दुश्मन बन चुकी है कि तुमने उसकी ताकत का सरचश्मा तिलिस्मी पुतला उसकी दुश्मन राक्षसनी चुड़ैल के हवाले कर दिया है। वो तुम्हें इसकी सजा देना चाहती है और हो सकता है तुम्हें हलाक करने की भी कोशिश करे। इमरान का सर चकरा गया, कहने लगा, ये मैं कहाँ किस मुसीबत में फंस गया हूँ? क्या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है? जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, गाफिल इंसान जब अपनी किसी गलती की वजह से किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो उसे अपनी गलती का नतीजा जरूर भुगतना पड़ता है। तुम भी अपनी किसी गलती का खुमियाजा भुगत रहे हो। अब तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम सब्र और हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला करो। मैं तुम्हारी यही मदद कर सकती हूँ कि अंगूठी तुम्हें दे दूं, इसको अपनी उंगली में पहन लो। इसमें कुदरत की कुछ अच्छी ताकतें हैं जो बुराई का मुकाबला कर सकती हैं। इमरान बोला, कहाँ है तुम्हारी अंगूठी? जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, अपने सिरहाने के नीचे देखो, तुम्हें वहां अंगूठी पड़ी हुई मिल जाएगी। इमरान ने सिरहाना उठाकर देखा, नीचे सब्ज रंग की एक अंगूठी पड़ी थी जिसमें कोई नगीना वगैरह नहीं जड़ा हुआ था। ये एक छल्ले की मानंद थी। इमरान ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। उसने जादूगरनी खोपड़ी से कहा, मैं अब वापस अपने शहर अपने घर जाना चाहता हूँ, वहां मेरे साथ जो कुछ होगा मैं उसका जुर्रत और हिम्मत से मुकाबला करूंगा। जादूगरनी की खोपड़ी कहने लगी, जुर्रत और हिम्मत के अलावा जिस ताकत की तुम्हें जरूरत होगी वो तुम्हारे अंदर मौजूद ईमान की ताकत है। ये ताकत नेक अमल और नेक ख्यालात से हरकत में आती है।
जब तक तुम्हारा अमल नेक रहेगा तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते रहोगे। तुम्हारे ईमान की ताकत तुम्हें हर आसेब और तलिस्म से महफूज रखेगी। अगर कमजोरी के किसी लम्हे तुम सच्चाई के रास्ते से भटक गए और तुम्हारे ख्यालात और अमल में बुराई शामिल हो गई तो शैतानी ताकतें तुम पर गालिब आने की कोशिश करेंगी और वह अपनी कोशिश में कामयाब भी हो सकती हैं। इसलिए अपने अमल को बुराई के रास्ते पर चलने से और अपने ज़हन को बुरे ख्यालात से बचाते रहना, इसी में तुम्हारी निजात है। इमरान बोला, मैं तुम्हारी हिदायत पर पूरी तरह से अमल करूंगा। अब मुझे किसी तरीके से मेरे घर पहुंचा दो। जादूगरनी की खोपड़ी पहले तो खामोश हो गई। उसने कोई जवाब न दिया। फिर कहने लगी, तुम्हारी तरह मैं भी अपने दुश्मन चुड़ैलों के दरमियान घिर चुकी हूँ। सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी का ख्याल मुझे यहाँ ले आया। मैं खुद खतरे में हूँ। राक्षस चुड़ैल मेरी दुश्मन है और जब उसे पता चला है कि मैंने तुम्हें यहाँ से भगा दिया है तो वो मुझसे बड़ा खौफनाक इंतकाम लेगी। इमरान ने कहा, इसका मतलब मुझे यहाँ से वापस अपने शहर अकेले ही जाना होगा। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, राक्षसनी की कैद से फरार होने के बाद हालात बदल गए हैं। राक्षसनी चुड़ैल तुम्हारे साथ अब मेरी भी दुश्मन हो गई है। वो किसी भी लम्हे यहाँ आकर मेरी लाश को जलाकर भस्म कर सकती है। इसलिए अब मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। इमरान ने झंझलाकर कहा, लेकिन तुम ही मुझे यहाँ लाई थी। अब तुम्हारा फर्ज है कि मुझे वापस पहुंचाओ। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पहुंचाया कि तुम बदरू औरत कजली का पुतला निकालकर मेरे पास लाओगे और मैं उसे जलाकर राख कर दूंगी और इस तरह से दुनिया के इंसानों को बदरू के अजाब से निजात मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारी गलती या तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ऐसा ना हो सका और तिलिस्मी पुतला मेरे पास लाने के बजाय तुमने उसे राक्षसनी चुड़ैल के हवाले कर दिया। तुम्हारी इस गलती की सजा दोनों को भुगतनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि तुम्हें यहाँ से निकालकर भारत के सूबे आंध्र प्रदेश के गांव शमशानगढ़ तक पहुंचा दूं। इससे आगे तुम्हें खुद पाकिस्तान पहुंचना होगा। इमरान बोला, ठीक है, कम से कम मैं इस जहन्नुम से तो निकल जाऊंगा। जादूगरनी की खोपड़ी ने खबरदार करते हुए कहा, आंध्र प्रदेश का गांव शमशानगढ़ किसी जमाने में आबाद गांव था। फिर ऐसा हुआ कि उस गांव में आसपास के जंगलों की डायनें औरतों की शक्ल में आकर रहने लगीं। उन्होंने गांव के लोगों को खाना शुरू कर दिया। उसके बाद लोग डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए और गांव वीरान हो गया। उस गांव के एक मकान का दरवाजा काले रंग का है। उस मकान की एक कोठरी में तुम्हें एक संदूकची मिलेगी जिसमें लाखों रुपए के भारतीय नोट पड़े हुए मिलेंगे। तुम अपनी जरूरत के मुताबिक संदूकची में से नोट ले लेना और अपने शहर की तरफ रवाना हो जाना। क्या तुम तैयार हो? इमरान के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कहने लगा, हाँ मैं तैयार हूँ। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ हरगिज आंखें न खोलना। इमरान ने आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते उसके कानों में शां शां की आवाज गूंजने लगी। उसका सर चकराने लगा। कुछ देर के बाद जादूगरनी की आवाज आई, अब आंखें खोल दो। इमरान ने आंखें खोली तो उसने देखा कि तारीक अंधेरी रात है। आसमान को स्याह घटाओं ने ढांप रखा है। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।